So, hi guys, hello all of you. Welcome to this lecture series on mole concept. It is the third part of the mole concept. हमने दो पार्ट पहले से mole concept के ऊपर कंप्लीट कर लिए हैं. अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके पहले दो पार्ट देखो, नहीं तो ये तीसरा पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा. It will be third part of mole concept. इसके अंदर अपन empirical formula, molecular formula, empirical weight, molecular weight इन सब के ऊपर बात करने वाले हैं. So आज अपन पहले थोड़ा अपने चैनल के बारे में और ट्यूटर्स के बारे में बता देते हैं. Crazy is concept revision anytime, anywhere for JEE Advanced, Mains and other competitive examinations. So we are a pool of students trying to educate the children, trying to giving knowledge to the children who could not afford the expensive institutions. So brief introduction of me, your chemistry tutor on Crazy. So myself Mitesh Bharadwaj. I am from Jaipur, Rajasthan. Currently I am pursuing my BTech degree in Mechanical Engineering from BITS Pilani, Goa, that is Birla Institute of Technology and Science, BITS Pilani, Goa campus. BITS has three campus, Pilani, Goa and Hyderabad. I am in Goa campus, right? My percentile in JEE Mains was 98, my advanced rank 12,000 and my comedy rank was 800 all over India, and I scored 144 marks in Comet K. My bid set score was 300. We at Crazy are focusing to teach students who could not afford expensive institutions. We have also gone through same phase of preparation, so we are aware of mistakes that are common and that are done by most of the students in exams, right? So we will be teaching you the whole syllabus of your examinations here on Crazy. So do like to our videos, do subscribe to our channel and press the bell icon for being updated on our upcoming videos, right? For being updated on our upcoming videos. You can follow us on Instagram, that is cray_je. For any queries or any questions related to my lectures, you have any doubts, you can feel free to write me at miteshbharadwaj05@gmail.com. So this is me sitting serious over here, right? So moving forward in our lecture series, firstly we will be trying to calculate the weight by weight percentage composition of a given element in the molecule, right? Trying to calculate weight by weight percentage in the given मॉलिक्यूल और आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला. सपोज वी हैव अ सैंपल, हमारे पास एक सैंपल है जिसके अंदर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है XYZ कंटेनिंग थ्री एलिमेंट्स A, B and C, राइट? कंटेनिंग थ्री एलिमेंट्स A, B and C विद देयर एटॉमिसिटीज आर X, Y and Z. सो जिसके अंदर वी नो W1 grams of A is present, W2 grams of B is present and W3 gram of C is present. W3 gram of C is present, right? W3 gram of C इसके अंदर present है. So अपन को परसेंटेज ऑफ A निकालना है, परसेंटेज ऑफ B निकालना है, परसेंटेज ऑफ C निकालना है, या फिर जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है उनके रेस्पेक्टिव परसेंटेजेस अपन को निकालने. तो अपन को पता है अपन कंपाउंड देख के उसका मॉलिक्यूलर वेट तो निकाल ही सकते हैं, टोटल वेट या फिर उसका मॉलिक्यूलर वेट. तो उसमें W1 ग्राम A है तो A का परसेंटेज कितना हो जाएगा? W1 by W टोटल into 100, राइट भाई? अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर हुआ, आपको 60 मार्क्स आए तो आपकी परसेंटेज कितनी होगी? 60%, दैट इज 60 by 100 into 100, राइट? सिमिलरली W टोटल मार्क्स का पेपर हुआ और आपको W1 मार्क्स आए तो आपकी परसेंटेज कितनी होगी? W1 by W टोटल into 100, एंड W टोटल इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड AXBYCZ. सो इसको लिखने का एक और तरीका है x इंटू एटॉमिक वेट ऑफ A अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100. अगर आपको W1 ग्राम क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन है, इन केस इसको ऐसे क्यों लिखा गया है ये हम आगे प्रॉब्लम करेंगे तो हमको पता लगेगा, ठीक है? तो आगे अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इन फॉर्मूलेस को ऐसे लिखा क्यों गया है, प्रॉब्लम्स करके आपको पता लगेगा. सो W1 कैन आल्सो बी रिटन एज x इनटू एटॉमिक वेट ऑफ A अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इनटू 100, राइट? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूं C2H4, तो अगर मैं आपको इसका 1 मोल दे देता हूं तो इसके अंदर आप ऐसे ही तो बोलोगे कि इसके अंदर 24 ग्राम ऑफ कार्बन प्रेजेंट है,
तो आपने किया क्या, 12 इंटू टू ही तो किया, उसका मॉलिक्यूलर वेट इंटू उसकी एटॉमिसिटी, वही यहाँ पे मैंने किया है x इंटू एटॉमिक वेट ऑफ A अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100. सिमिलरली परसेंटेज ऑफ B इज W2 by W total into 100 and in this terms it is written as y into atomic weight of B. Why because atomicity of B is 5, B के y atoms present है upon total molecular weight into 100. Total molecular weight of the compound that is your AX, BY and CZ, right? ये आपका total molecular weight, इस compound का total molecular weight. Similarly C का कितना हो जाएगा, W3 by W total into 100, that is Z into atomic weight of C upon total molecular weight of the sample into 100, right? अगर आपको क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन मतलब कि डायरेक्ट ये पार्ट गिवन है और आपको टोटल मॉलिक्यूलर वेट पता है, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखें इज इक्वल टू x इंटू एटॉमिक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100. तो वहां से आप डायरेक्टली एक्स वाई जेड कैलकुलेट कर लेंगे और आप इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे किसी भी कंपाउंड का, राइट? अब एक अपन प्यारी सी प्रॉब्लम करते हैं तो अपने को और क्लियरिटी आएगी फॉर्मूलेस के ऊपर. एक कंपाउंड है जिसके अंदर आपके पास कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो मास रेशियो है वो 9:1:3.5 गिवन है. यही तो बोला है, इफ इन अ कंपाउंड मास रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इज 9:1:3.5 और टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज 108. तो आपको कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है. कंपाउंड का क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है. अच्छा भाई, बहुत बढ़िया भाई. तो सबसे पहले अज्यूम कर लो कि जो आपका कंपाउंड है that is nothing but CXHYNZ, right? ये आपका कंपाउंड है. मान लो कि X एटम्स कार्बन के प्रेजेंट है, Y एटम्स हाइड्रोजन के प्रेजेंट है और Z एटम्स आपके नाइट्रोजन के उसमें प्रेजेंट है. तो मास कार्बन का कितना हो जाएगा, 9x फ्रॉम आइडियाज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन. इसका कितना हो जाएगा x और इसका कितना हो जाएगा 3.5x, राइट? तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सैंपल कितना हो गया, 9x प्लस x प्लस 3.5x, राइट? 9x प्लस x प्लस 3.5x. इसको आप सम कर लेंगे टोटल तो इट विल बी 13.5x, राइट? इट विल बी 13.5x. अब एक तरीका तो यह है कि इसको इक्वल टू 108 करके x की वैल्यू निकाल लो, इक्वल टू 108 करके x की वैल्यू निकाल लो, तो वहां से आपको इसका मास पता चल जाएगा, इसका मास पता चल जाएगा और इसका मास पता चल जाएगा. वहां से रिस्पेक्टिव उनकी परसेंटेजेस निकाल लो और फिर इस फॉर्मूले में प्लेस करके x y z निकाल लो. या दूसरा तरीका, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी हो जाएगी, 9x अपॉन 13.5x इंटू 100, राइट? W1 अपॉन W टोटल इंटू 100, W1 अपॉन W टोटल इंटू 100, W1 अपॉन W टोटल इंटू 100. दैट इज नथिंग बट x इंटू एटॉमिक वेट ऑफ A, x उसकी एटॉमिसिटी, एटॉमिक वेट 12 अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर वेट 108 इंटू 100. इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6. सिमिलरली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज x इंटू x अपॉन 13.5x इंटू 100. That is nothing but y into atomic weight of B, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, अपॉन 108 टोटल वेट इंटू 100. यहां से सॉल्व किया तो y आ गया 8. सिमिलरली परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा 3.5x अपॉन 13.5x इंटू 100. दैट इज नथिंग बट z इंटू एटॉमिक वेट ऑफ C अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100. सो यहां से सॉल्व करेंगे तो z इज इक्वल टू 2. अपन ने सिंपल सा फॉर्मूला निकाल लिया C6H8N2, C6H8N2. दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ योर कंपाउंड, right? That is the molecular formula of your compound. C6H8N2 is the molecular formula of the compound. कंपाउंड का फॉर्मूला आ गया C6H8N2. नाउ इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला व्हिच इज जनरेटेड बाय सिंपल रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंपेरिकल फॉर्मूला. सिंपल रेशियो से जो फॉर्मूला आता है उसको इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं. फॉर एग्जांपल ये जो फॉर्मूला आया था ना अपना C6H8N2, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. क्यों? क्योंकि सिंपल होल रेशियो में नहीं है. अभी इसको पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे जब ये सिंपल रेशियो में आएगा, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, C3H4N. ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा.
इस फॉर्मूले के करस्पॉन्डिंग जो इसका वेट होगा ना उसे बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट, उसे बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट। क्यों? क्योंकि ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के करस्पॉन्डिंग जो वेट होगा ना उसे बोलेंगे इंपेरिकल वेट। क्यों? क्योंकि ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला है। इसके करस्पॉन्डिंग इंपेरिकल वेट, इसके करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वेट, राइट। और इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला? इसका सिंपल होल रेशियो लेके। तो जब भी इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा जाएगा तो पहले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही कैलकुलेट होगा, उसका सिंपल रेशियो लेंगे तो इंपेरिकल फॉर्मूला अपने को मिल जाएगा, राइट। So formula which is generated by simple ratio of atoms present in the molecules is called as empirical formula। वही empirical formula होता है। For example C6H6 बेंजीन है, इसका molecular weight होता है 78। C2H2 एसिटाइलिन है या फिर इथाइन है, राइट, इथाइन है, C ट्रिपल बॉन्ड C, दैट इज इथाइन, और इसका कॉमन नेम होता है एसिटाइलिन। ये अपन ऑर्गेनिक में देखेंगे, एसिटाइलिन। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 26। 26 कैसे? 12 into 2 हाइड्रो, इसका कितना 24, और हाइड्रोजन का कितना 1 into 2 26। सिमिलरली इसका कितना 12 into 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 into 6, तो टोटल इसका कितना हो गया 78, और इसका कितना हो गया 26। तो ये जो इनके फॉर्मूला है ना, ये इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सिंपल रेशियो में नहीं है। अभी आप इसको 6 से डिवाइड करोगे तभी सिंपल रेशियो में आएगा CH, राइट। और ये C2H2 भी अभी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है, और सिमिलरली ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। इसको आप सिंपल रेशियो में करोगे तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा CH, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वेट होगा ना 13, वो इसका इंपेरिकल वेट होगा। वो इसका कौन सा वेट होगा? वो इसका वेट वो होगा इसका इंपेरिकल वेट, राइट। इसके करस्पॉन्डिंग जो वेट आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग भी इसका इंपेरिकल वेट 13 आएगा। तो हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट डिराइव कर लिया, क्या कि दो कंपाउंड्स के इंपेरिकल वेट सेम हो सकते हैं, दो कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर वेट सेम नहीं हो सकते। दो डिफरेंट कंपाउंड्स तो उनके मॉलिक्यूलर वेट्स तो डिफरेंट होंगे, या बट दो डिफरेंट कंपाउंड्स के इंपेरिकल वेट सेम हो सकते हैं। दो डिफरेंट कंपाउंड्स के इंपेरिकल वेट मे बी सेम और मे बी डिफरेंट। तो ट्रू फॉल्स के अंदर, एडवांस के अंदर ये पूछा जाता है पेपर के अंदर कि इंपेरिकल वेट इज यूनिक, it is same for empirical weight is unique for each and every element, it is different for each and every element। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि दो कंपाउंड का इंपेरिकल वेट मे बी सेम, हमने इस एग्जांपल में देख लिया। तो CH इज योर इंपेरिकल फॉर्मूला, CH इज योर इंपेरिकल फॉर्मूला, CH इज योर इंपेरिकल फॉर्मूला, एंड इसका जो वेट है दैट इज कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 दैट इज 13 इज योर इंपेरिकल वेट। ये है इंपेरिकल वेट। तो सिंपल रेशियो में कंपाउंड प्रेजेंट होगा तो उसको इंपेरिकल फॉर्मूला बोलेंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग जो वेट होगा दैट इज योर इंपेरिकल वेट, राइट। अब रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट और इंपेरिकल वेट क्या है? हाँ भाई, दोनों अलग अलग चीजें, लेकिन दोनों के बीच में एक सर्टेन रिलेशन भी एग्जिस्ट करता है, दोनों के बीच में एक सर्टेन रिलेशन भी एग्जिस्ट करता है। आइए वो रिलेशन सीखते हैं। जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना दैट इज सम इंटीजर इनटू इंपेरिकल वेट, राइट। कैसे? इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 78, दैट इज सम इंटीजर 6 इनटू इसका इंपेरिकल वेट जो है 13। आइए इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 26, दैट इज सम इंटीजर 2 इनटू इंपेरिकल वेट। तो वो जो इंटीजर n है वो इंटीजर हम कैसे निकालें सर? वो इंटीजर आप निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट को इंपेरिकल वेट से डिवाइड करके, सिंपल इंटीजर आप निकाल सकते हैं, और उस इंटीजर को इंपेरिकल वेट की सबस्क्रिप्ट्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल इसका कितना है इंपेरिकल वेट 13 और इसका कितना है मॉलिक्यूलर वेट 78, तो 13 अपॉन 78 अपॉन 13 आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, तो इसका इंटीजर हो गया 6, और इसकी सबस्क्रिप्ट से 1 और 1 C1H1, तो इसके सबस्क्रिप्ट्स में ये इंटीजर मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी C6H6 1 into 6 1 into 6, तो मेरे को इसका मॉलिक्यूलर वेट पता लग जाएगा। सिमिलरली C2H2 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 26, तो इसमें जो सम इंटीजर n होगा दैट इज 26 अपॉन 13, ये आपके n की वैल्यू होगी, राइट। ये n की वैल्यू होगी दैट इज 26 into 26 अपॉन 13 दैट इज इक्वल्स टू 2, दैट इज इक्वल्स टू 2। अब इसकी सबस्क्रिप्ट्स 1 और 1 है, तो इसकी सबस्क्रिप्ट्स में मैं उस इंटीजर का मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 into 2 2 दैट इज C2 एंड H2, तो मेरे पास डायरेक्टली इंपेरिकल
वेट से मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा और n भी निकल गया जो कि एक सिंपल इंटीजर था, राइट, जो कि एक सिंपल इंटीजर था। सिंपल इंटीजर निकाला, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट। सो मॉलिक्यूलर वेट इज नथिंग बट सम इंटीजर इनटू इंपेरिकल वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट इज n इनटू इंपेरिकल वेट एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इंपेरिकल फॉर्मूला और सबस्क्रिप्ट के अंदर वो इंटीजर। फॉर एग्जांपल let us consider C4H8, right, let us consider C4H8। C4H8 का मास कितना है? कार्बन का 12 इंटू 4 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 8, दैट इज 48 प्लस 8, दैट इज 56, राइट। और C4H8 अभी सिंपल होल रेशियो में नहीं है, सिंपल होल रेशियो में C4H8 नहीं है, अभी इसके अंदर अपन 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका सिंपल मॉलिक्यूलर सिंपल इंपेरिकल फॉर्मूला जो कि होल रेशियो से निकल के आया, दैट इज योर CH2, दैट इज CH2। अब CH2 का वेट कितना हो जाएगा? कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2, दैट इज योर 14, राइट। तो इसके अंदर वो इंटीजर कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 56 अपॉन इंपेरिकल वेट दैट इज 14, दैट इज योर 4, राइट। तो n की वैल्यू इसमें जो भी इंटीजर था उसकी वैल्यू आ गई 4। अब आपको इंपेरिकल से मॉलिक्यूलर पे जाना है, तो इसके सबस्क्रिप्ट्स में 4 का मल्टीप्लाई कर दो। सबस्क्रिप्ट्स में 4 का मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि C का कितना हो जाएगा? 1 इंटू 4 4 और हाइड्रोजन का 2 इंटू 4 दैट इज 8, C4H8, C4H8 डायरेक्ट पहुंच गए वहां तक। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, सबस्क्रिप्ट्स के अंदर इंटीजर। ये सबस्क्रिप्ट का पार्ट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं समझ आया तो वीडियो को रिवाइंड करके वापस से समझने की कोशिश करें। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंपेरिकल वेट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और ये समझना बहुत जरूरी है। क्या कि मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस का molecular weight of substance is always an integral multiple of empirical weight. For a given composition, the minimum molecular weight corresponds to or belongs to empirical weight of a substance. ये दो लाइन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहन में उतर जानी चाहिए। क्या कि जो मॉलिक्यूलर वेट है वो इंपेरिकल वेट का इंटीग्रल मल्टीपल है। दूसरी बात, जब से आपसे मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट की बात करी जाएगी तो वो हमेशा उसका इंपेरिकल वेट ही होगा। आपसे पूछा जाए डायरेक्टली C4H8 का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बताएं तो यू विल नॉट टेल इट एज 56, यू विल टेल इट एज 14। क्यों? क्योंकि इसका इंपेरिकल वेट 14 है। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इस कंपाउंड का 14 होगा। ये क्वेश्चंस आते हैं मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड देके पूछते हैं, इसीलिए इस पे इतना एम्फेसाइज डाल रहा हूं कि इंपेरिकल वेट ही लिखना है अगर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा तो। ये क्वेश्चंस बच्चों को मल्टी करेक्ट में बहुत परेशान करते हैं। Next, minimum molecular mass of a given substance is always empirical weight and with respect to given composition. ये हमने पढ़ लिया। For calculation of minimum molecular mass, the element whose percentage composition is given, assume one atom of that element is present in the given molecule and molecular weight which comes out of it is minimum molecular weight of given element. ये दूसरी कैटेगरी है क्वेश्चंस की कि आपको कोई भी कंपाउंड देके उस कंपाउंड में रेस्पेक्टिव एलिमेंट का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि AXBYCZ एक कंपाउंड है और इसके अंदर W1 ग्राम A प्रेजेंट है। अगर इसमें W1 ग्राम A प्रेजेंट है तो A का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? A का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा ये पूछ लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम का केस है। क्या? इफ ओनली वन एलिमेंट इज गिवन एंड वी नीड टू कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स। तो मान लो कंपाउंड था AXBYCZ, परसेंटेज ऑफ A दे दिया, W1 दे दिया, तो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं ना, W1 by W टोटल इंटू 100 करके, या डायरेक्टली परसेंटेज भी दे सकता है और परसेंटेज नहीं दी तो परसेंटेज हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो दैट इज A is equal to x into atomic weight of A upon molecular weight। अब आपको जो ये एटॉमिक वेट है ना A का, ये जो एटॉमिक वेट है A का, इसको मिनिमाइज करना है। इसको मिनिमाइज करना है तो ये मिनिमम कब होगा? जब x की वैल्यू 1 होगी। x की वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती ना,
x की वैल्यू 0 का मतलब कि वो रेस्पेक्टिव एटम उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है। अगर वो रेस्पेक्टिव एटम उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है तब तो क्वेश्चन ही नहीं बनता पूछने का। तो इसलिए x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, मिनिमम x की वैल्यू 1 ही होगी, मिनिमम x की वैल्यू 1 ही होगी। तो अगर आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो आपको m की वैल्यू को 1 रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमें दे दे कि इफ देयर इज अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन विद अदर एलिमेंट्स, कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन है, खूब सारे और पता नहीं खूब सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं उस कंपाउंड के अंदर, और उस कंपाउंड के अंदर जो कार्बन का परसेंटेज है वो 75 है। तो आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बताना है AXBYCZ का या CXAYBZ का, सॉरी क्योंकि कार्बन उसके अंदर प्रेजेंट है। तो आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बताना है कंपाउंड का, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बताना है कंपाउंड का, राइट। तो मिनिमम के लिए x इज इक्वल टू 1 करना है, कुछ नहीं करना, जो परसेंटेज गिवन है 75 दैट इज x इनटू एटॉमिक वेट ऑफ A, तो वो तो 1 ही होगा मिनिमम के लिए, एटॉमिक वेट उसका 12 है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को कुछ भी मान लो m। तो इसको सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी इनटू 100, सॉरी परसेंटेज इनटू 100 होगा ना, तो m की वैल्यू सॉल्व करके यहां से कितनी आ जाएगी 16, राइट। यहां से m की वैल्यू सॉल्व करें तो कितनी आ गई, m की वैल्यू सॉल्व करी तो आ गई 16, राइट। सो आपसे क्या देगा, कंपाउंड दे देगा, कंपाउंड देने के बाद किसी एटम की परसेंटेज दे सकता है या किसी एटम का वेट और टोटल मॉलिक्यूलर वेट दे सकता है कंपाउंड का। तो एटम की परसेंटेज निकालनी कुल मिला के, फिर आपसे कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा, आपसे कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा, तो उसके लिए आपको x को 1 करना पड़ेगा, x को 1 करना पड़ेगा। क्यों, अगर एटॉमिक वेट मिनिमम होगा उस कंपाउंड में तभी उसका मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम होगा, और उसको मिनिमाइज करने के लिए x को 1 होना पड़ेगा, x 0 नहीं हो सकता, क्यों, अगर x 0 हो गया तो मतलब वो कंपाउंड के अंदर वो एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, राइट। दूसरा केस क्या बन सकता है, इफ देयर आर मोर देन 2 एलिमेंट्स इट्स 2, more than 2 elements whose percentage composition is given and we have to calculate minimum molecular mass, right। इस केस के अंदर क्या हुआ, ये जो हमने प्रीवियस केस पढ़ा है, इस केस के अंदर क्या हुआ, इस केस के अंदर ये हुआ कि हमको एक ही एलिमेंट गिवन था, उसकी परसेंटेज गिवन थी और उसका हमें मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का उसके रेस्पेक्ट में पूछ लिया। लेकिन मान लो कि एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं, अब है इसमें भी एक से ज्यादा, लेकिन हमको इसमें इंफॉर्मेशन एक की गिवन है, आई मीन कि हमें इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा की गिवन हो, तो हम उस रेस्पेक्ट में क्या करते हैं कि जिन जिन एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन हमको गिवन है, जिन जिन एलिमेंट्स की हमको इंफॉर्मेशन गिवन है उनके रेस्पेक्ट में हम कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। ठीक है, मान लो आपको A की परसेंटेज गिवन है, B की परसेंटेज गिवन है, तो A के रेस्पेक्ट में आप मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, B के रेस्पेक्ट में मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, और जो का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट होगा दैट विल बी एलसीएम ऑफ बोथ दी मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट जो आपने कैलकुलेट करें, उनका एलसीएम हो जाएगा, राइट। यही मैंने लिखा है। क्या, अगर आपको 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स दिए हैं, एलिमेंट्स के परसेंटेज कॉम्पोजिशन या उनके वेट्स और कंपाउंड का टोटल वेट दे के परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूछा है, या मतलब परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है या वो दे देगा, पड़ सकता है आई मीन कि वो आपको उसका वेट दे देगा और टोटल वेट दे देगा, तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमारे पास है एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स का एक कंपाउंड के अंदर, और आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बताना है। तो आप क्या करेंगे, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास विद रेस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी एलिमेंट निकालेंगे जिसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन है, हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द होल कंपाउंड इज एलसीएम ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास विद रेस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी एलिमेंट। ईच एंड एवरी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में जो एलसीएम होगा वो आपका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल AXBYCZ आपको गिवन है, इसमें A का परसेंटेज, B का परसेंटेज, C के परसेंटेज, A, B और C है, तो वही हमने ऊपर से वैल्यूज प्लग इन करके मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो जो भी मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो x, y और z जो भी होगा वो आपका 1 होगा। कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हो सर, मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, इस फॉर्मूले की वही मैंने लिखा और x, y, z को 1 कर दिया, बिकॉज हमें कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, उसके लिए एटॉम का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। एटॉम का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट होने के लिए उनकी रिस्पेक्टिव एटॉमिसिटीज 1 1 1 होनी चाहिए, राइट। तो मैंने 1 निकाला, 2 निकाला, 3 निकाला, और इनके रेस्पेक्ट में मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, m1 m2 और m3 इनके रेस्पेक्ट में मान लिया, ठीक है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। तो
इनके रेस्पेक्ट में मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया, m1 आ गया, m2 आ गया, m3 आ गया। अब अगर आपको होल कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट जानना है, दैट इज LCM ऑफ m1 m2 and m3, right? That is LCM of m1 m2 and m3. For example, in a given compound, percentage of carbon is 75, hydrogen is 25, then what is the minimum molecular mass with respect to carbon, with respect to hydrogen, and minimum molecular mass of the compound? तो 75 आपको उसकी परसेंटेज गिवन है, that is 1 into उसका एटॉमिक वेट 1 upon m1 into 100। तो यहां से सॉरी 25 गिवन है, नॉट 75, 25 हाइड्रोजन की 25 गिवन है ना। तो यहां से m1 की वैल्यू कितनी आ गई साहब, m1 को यहां से मैं सॉल्व करूंगा तो 4 आ जाएगा। सिमिलरली उसका मेरे को कार्बन का गिवन है 75, दैट इज 1 इंटू उसका एटॉमिक वेट 12 अपॉन टोटल m2 इंटू 100। तो यहां से मैं सॉल्व करूंगा तो m2 की वैल्यू आ जाएगी 16। देखिए वही करा है, 75 इज इक्वल टू 1 इंटू 12 अपॉन m2 इंटू m1 इंटू 100, दैट इज 16, और इससे निकाला तो m2 4। नाउ मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ होल कंपाउंड विल बी LCM ऑफ 16 एंड 4, इन दोनों का LCM, दैट इज 16, राइट, दैट इज 16। So minimum molecular mass of the compound is LCM of 16 and 4, that is 16, and minimum molecular weight is also integral multiple of 16 for more than one correct type question। ठीक है, अब अगर आपको क्वेश्चन ये आता, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ये आता और आपको ऑप्शन दिए होते 16, 64, 32 एंड 80, ये ऑप्शंस दिए होते तो आंसर विल बी A, B, C एंड D, चारों आंसर होते। 16 तो आपने उसका LCM लेके निकाल लिया, क्या 4 और 16 के 64 मल्टीपल नहीं है, 32 मल्टीपल नहीं है, 80 के मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब जो आपने मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकाला है LCM से, उसके जो भी मल्टीपल्स होंगे वो कंपाउंड के मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट होंगे ही होंगे, इन केस ऑफ मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस जो कि एडवांस के अंदर पूछे जाते हैं। अगर सिंगल करेक्ट आता है तो आपको 16 ही मार्क करना है, अगर सिंगल करेक्ट आता है तो ओनली 16 आंसर होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर मल्टी करेक्ट आता है तो ये और ये क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसा बोलती है, इसलिए, राइट। तो मल्टीपल करेक्ट आता है तो चारों, और सिंगल करेक्ट आता है तो जो आपने कैलकुलेट किया है बस वही। अब अपन कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस प्रॉब्लम की, इस चैप्टर के अंदर से अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके रेस्पेक्ट में। आइए करते हैं। पहला आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो एटम्स निकालने के लिए पहले मेरे को मोल्स निकालने पड़ेंगे। लास्ट फॉर्मूले में हमने पढ़ा था कि जो भी आपके पास मोल्स होते हैं, लास्ट वीडियो में, कि मोल्स होते हैं दैट इज नथिंग बट एटम्स या फिर पार्टिकल्स या फिर आयंस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो जो भी एटम हो गए, पार्टिकल हो गए, आयन हो गए, दैट इज मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, 11 ग्राम ऑफ CO2, 11 अपॉन 44, क्योंकि CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 16 इंटू 2 32 एंड 12 प्लस 32 इज 44, दैट इज 1/4 इंटू Na कर दूंगा टोटल पार्टिकल्स के लिए। लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। अच्छा, एटम्स के लिए तो आपको रेस्पेक्टिव एटॉमिसिटी से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि कितनी है वो पढ़ा था ना, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एन इंटू एन ए। तो x प्लस वाई प्लस जेड इसमें कितना है 3, तो इट इज 3/4 Na। ठीक है, सिमिलरली इसके मोल्स निकालोगे 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, आई डोंट हैव स्पेस, यहीं कर देता हूं, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन यानी 4/2 इंटू 2 इंटू Na इंटू 2 क्यों गया, एटॉमिसिटी, वो पढ़ा था ना x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एन इंटू एन ए लास्ट लेक्चर में। तो यहां से इसके हो गए 4 Na, इसके हो गए भाई 4 Na, इसके हो गए 3/4 Na, इसमें बढ़ते 5 ग्राम ऑफ NH3, NH3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 17, तो इसके हो जाएंगे 5/17 इंटू इसकी टोटल एटॉमिसिटी कितनी है 4 इंटू Na, that is 20/17 is nothing but 1 point something into Na, right? and 8 ग्राम ऑफ SO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 64, सल्फर का 32 और 2 ऑक्सीजन का 32, 32 32 64, 8/64 is 1/8 इंटू इसकी एटॉमिसिटी 3 इंटू Na, तो 3/8 Na। तो लार्जेस्ट एटम्स किसके हो गए, हाइड्रोजन के 4 ग्राम हाइड्रोजन के, क्योंकि इसमें 4 Na आए हैं, अपन ने निकाले। द चार्ज ऑन Al+3 आयन इज Na, चार्ज ऑन Al+3 आयन इज, ये पूछा कि इस पे चार्ज कितना है, Na इज एवोगैड्रो एंड नंबर एंड E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो आपको बताना है, तो इसके अंदर जो भी चार्ज होगा 1 ग्राम आयन
1 ग्राम आयन के अंदर। 1 ग्राम आयन का मतलब कि 1 मोल होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 1 ग्राम आयन 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज नथिंग बट 1 मोल। तो इसका 1 मोल दे दिया, तो 1 मोल दे दिया तो इसके नंबर इसके अंदर पार्टिकल्स कितने हो गए, Na पार्टिकल्स हो जाएंगे, और Na पार्टिकल्स हैं और इसके अंदर जो भी चार्ज होगा वो इसके 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, जो कि 3 इलेक्ट्रॉन्स इसकी डेफिशिएंसी है, 3 इलेक्ट्रॉन की उनकी वजह से चार्ज होगा, दैट इज 3, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E, तो 3E into Na, 3E into Na यानी 3Ne कूलम, राइट। नेक्स्ट, क्लोरीन इज इन टू फॉर्म Cl35 and Cl37 with 75-25% by mole in atmosphere, calculate average molecular weight। देख लो क्वेश्चंस उसी लैंग्वेज पे घूम घूम के आप ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर के अंदर आते हैं, सेम यही लैंग्वेज होगी पेपर के अंदर, थोड़ा घुमा देगा, वो प्रैक्टिस से आपको सीखना पड़ेगा। बाकी मोल वाइज परसेंटेज इसके अंदर गिवन है, मतलब इसके मैं मान लेता हूं कि इसके 75 मोल है और इसके 25 मोल है, तो m1y1 into m2y2 into m3y3 upon m1 plus m2 plus m3 वही करना है। तो 75 और इसका जो वो है y1 is their respective mole percentages and m1 m2 m3 is their respective masses, और मैंने बताया था एलिमेंट का सिंबल देख के पकड़ना होगा, that is 35 plus that is 37 into 25 upon 100 इसको सॉल्व करेंगे, that is 35.5 AMU। नेक्स्ट, एक कंपाउंड के अंदर 5.37% नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, तो वही परसेंटेज दे दी, यानी 5.37 दे दिया आपको परसेंटेज, वही तो आज का ही लेक्चर है। इज इक्वल टू उसके रेस्पेक्ट में x की वैल्यू में 1 मान लूंगा, उसका एटॉमिक वेट होता है 14 अपॉन कंपाउंड का मान लूंगा टोटल और इनटू 100, यहां से सॉल्व करूंगा तो m की वैल्यू हो जाएगी 260.7, राइट। ये इजी सा क्वेश्चन था। एक नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, कॉर्टिसोन एक ड्रग होता है, इस पे ज्यादा एम्फेसाइज मत करो। कॉर्टिसोन इज अ मॉलिक्यूल जिसके अंदर 21 एटम्स है कार्बन के, मतलब कॉर्टिसोन कुछ भी होगा लेकिन उसके अंदर C21 प्रेजेंट होगा, बाकी आगे कुछ भी हो सकता है, C21 AX BY ऐसे मान लो। पर मॉलिक्यूल एंड मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 69.98, तो इट्स मोलर मास मतलब कॉर्टिसोन का मोलर मास पूछा गया है, तो इसका परसेंटेज कितना है 69.98 इज इक्वल टू x इंटू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉर्टिसोन इनटू 100, तो x कितना है 21 गिवन है, एटॉमिक वेट 12 होता है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट निकालना है इनटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 इंटू 12 इंटू 100, ये उधर चल जाएगा और ये इधर आ जाएगा अपॉन 69.98, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 360.10 ग्राम। लास्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जिसका मोलर मास 100 से ज्यादा है, वो सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ही कंटेन करता है, तो मैं मान लेता हूं CX HY और NZ, राइट। मान लो, पता नहीं आगे जरूरत पड़े नहीं पड़े, मान लेते हैं पहले। और बोला कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 6 टाइम्स द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन व्हाइल सम ऑफ परसेंटेजेस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज 1.5 टाइम द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, देन व्हाट इज द लीस्ट मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। ये आज पढ़ा उसी के ऊपर है कि एक या एक से ज्यादा एलिमेंट गिवन है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड पूछा है, तो आप क्या करें, उनके रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूलर मास निकालें और लास्ट में जिन कंपाउंड्स के रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूलर मास निकाला है उनका LCM ले ले। तो लेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज x%, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 6%, है ना। इसका x% मान लिया तो हाइड्रोजन का 6 टाइम हो जाएगा कार्बन, जो कि हो गया 6%। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम कितना हो गया 7x इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का 1.5 टाइम, तो यहां से नाइट्रोजन की परसेंटेज इसको डिवाइड कर देंगे, that is approximately 5x%, that is approximately 5x%, राइट। और टोटल परसेंटेजेस का सम कितना होता है 100 होता है, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 8 आ जाएगा। सो कार्बन इज 48%, हाइड्रोजन इज 8% एंड नाइट्रोजन इज 40%। आपको केमिस्ट्री में अप्रोक्सीमेशंस लेंगे होंगे, जैसे ये 100 और ये कितना हो रहा है 12 by 100 is 12, 8 जा 96, it is nothing but 8.33 समथिंग, तो 8.5 से छोटा है तो इसको अप्रोक्सीमेटली आप 8 कर लें अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, मैंने अप्रोक्सीमेट लेके आंसर निकाल दिया। सो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 48 और
अपन को मिनिमम निकालना है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 1 1 कर देंगे, 1 into 12 upon m1 into 100, सिमिलरली 8 is equals to 1 into 1 upon m2 into 100, सिमिलरली 40 is equals to 1 into 14 upon m3 into 100। इससे सॉल्व किया तो m1 आ गया 25, m2 आ गया 12.5 और m3 आ गया 35। तो जो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास होल कंपाउंड का होगा दैट विल बी एलसीएम ऑफ 25, 12.5 एंड 35। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द होल कंपाउंड इज एलसीएम ऑफ m1 m2 एंड m3 दैट इज 175, इन तीनों का LCM। सो ये प्रॉब्लम्स है, आपको इनको प्रैक्टिस करना है। 5 प्रॉब्लम्स अभी तक हमने पढ़ा है, मैंने सेलेक्ट करके बनाई है 5 प्रॉब्लम्स अभी तक जो हमने पढ़ा उसके ऊपर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन राइट मी एट माई मेल हैंडल दैट इज miteshbharadwaj05@gmail.com। इसके ऊपर आप मुझे मेल कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स को बताना। और कोई भी डाउट हो तो इस पे आप लिख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस डे, लव यू।